Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your mastermind faculty and NORCET batch mentor. And today I welcome you all in the orientation program to Plan MLB Pro. So yes, welcome to your digital coaching Pathshala, Nursing Next Life, the next level of nursing education. And this video is especially to all those nursing aspirant, those who are preparing, or their goal is to prepare for NORCET 7.0. So let me make this very clear that this orientation program is focusing the nursing aspirant preparing for 7.0 entrance examination. So if you are one of them जिसका goal या target 7.0 NORCET है, then this video is specially for you. So watch till the end of this video because there are lots of important strategy and important planning which I will be sharing in this video, and I'm sure this video will be very helpful for preparing NORCET 7.0 entrance examination. So as a nursing aspirant, I always believe that it is important that हमने जब भी कोई goal set किया है, so it is important that we have to after setting the goal we have to act. We have to do a lot of strategically planning, and after planning we have to do the action in order to achieve that goal. So there is you cannot achieve or accomplish any goal without action. Action should be there, and in order to do that action, first you should have a plan, first you should have a strategy. This is the reason why a lot of nursing aspirant, they seek guidance, they seek counseling कि हमें क्या करना चाहिए, rather than simply हमने एक गोल सेट किया कि 7.0 एंट्रेंस हमें NORCET का देना है, अभी सितंबर में एग्जाम है, मुझे जो है आई हैव 6 मंथ 5 मंथ का टाइम है मेरे पास, मैं साउंडर्स बुक लूंगी या ब्रूनर एंड सिद्धार्थ लूंगी, उसको पूरा पढ़ लेना है एंड मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं. तो ये दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हेयर टू डिस्कस दिस इशू विद यू ऑल, बिकॉज कैसे आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रैटेजिक वे में जाए, सो दैट द वैल्यूबल टाइम विच यू आर गिविंग फॉर प्रिपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन, दैट शुड बी वर्थफुल, so that you can have some productive outcome, right? There are lot of student at present also जो जिन्हें लगता है कि मुझे प्रिपेयर करना है, so that मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास सारी बुक्स है बीएससी की, मैं वो सारी बुक्स को एक बार गो थ्रू करूंगी, सिलेबस आफ्टर ऑल वही होगा जो आईएनसी का सिलेबस है, एंड आफ्टर मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ लूंगी वो सारी बुक को रेफर करके, एंड देन आई एम रेडी फॉर द NORCET. इफ यू आर समवन हु बिलीव दैट दिस इज इनफ फॉर NORCET, then here I need to correct yourself, because here we need to understand that NORCET जो एक nursing में, which is again we all know it's a very important government entrance examination which every second nursing student wants to attempt and wants to become a part of AIIMS Institute, or wants to become a nursing officer for AIIMS, right? तो ये हम सब जानते हैं कि हम जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनका ड्रीम जॉब होता है टू बी सेलेक्टेड इन द AIIMS एंड वर्किंग देयर एज अ नर्सिंग ऑफिसर. बट उस ड्रीम को क्या हमें सिर्फ ड्रीम रखना है, और वेदर वी हैव टू वर्क फॉर इट, राइट? I know there are a lot of students who are watching this video जो pass out हैं and they are working somewhere in the private hospital or maybe in some other professional segment. They want to appear in the NORCET examination, but they don't have a proper guidance, they don't have a proper planning, they don't have any schedule कि उन्हें करना क्या है, and how to prepare, what is important. These are very important questions that every nursing aspirant preparing for NORCET should ask to themselves, right? कि कैसे prepare करना है, कहाँ से prepare करना है, what to prepare, how to prepare, and when to prepare.
राइट. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जो हमेशा मैं एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, आई कीप ऑन टेलिंग माई स्टूडेंट के यू शुड बिफोर आपने गोल सेट किया है, आपने जब गोल सेट किया दैट मीन्स यू हैव समथिंग इन योर माइंड. आपको पता है कि मुझे आफ्टर माई नर्सिंग और मे बी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ, सो फॉर माई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आई नीड टू क्लियर दिस नॉर्सेट एग्जामिनेशन, और मुझे नॉर्सेट क्लियर करके एम्स में जॉब चाहिए. इफ यू हैव डिसाइडेड दिस, इफ यू हैव सेटल्ड योर गोल, आपका ये टारगेट है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. इसको लेट गो नहीं करना है, एंड डोंट टेक इट इन अ वेरी कैजुअल मैनर कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा. ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं दे आर नेवर एंडिंग. राइट. ऑलवेज लिसन, ऑलवेज ये हमेशा याद रखिए कि देर इज नो एंड टू एनी एक्सक्यूज. हम एज अ स्टूडेंट, एज अ एज अ पर्सन वी कीप ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस. इन दैट वे वी विल नेवर रीच और वी विल नेवर एबल टू अचीव आवर गोल दैट वी हैव सेट. So number one point, agar if you truly, you have truly set your goal, your target, that 7.0 is my target, 7.0 NORCET को मुझे clear करना है, then in that case this video will be very helpful for you. So first and foremost you have to decide by yourself कि आपको keeping your your availability of time, आपका schedule क्या है, आप कहाँ busy हो, because this is the thing which you know better than any टीचर, एनी मेंटोर. आप ही अपने टाइम को अच्छे से समझ सकते हो कि आपका कहाँ कहाँ टाइम जाता है, एंड वेदर यू आर रेडी फॉर प्रिपरेशन और वेदर यू एबल यू हैव टू अचीव दैट गोल और नॉट. सो हमेशा याद रखिए गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, जिसके लिए आप ही यू आर द ओनली वन हु विल सेट कि दिस इज माई गोल. राइट. आई हैव टू, नो मैटर मेरे पास कितना टाइम है, मैं प्राइवेट में जॉब करती हूँ, मैं डेली 8 आवर की शिफ्ट ड्यूटी करती हूँ, मैं 12 आवर की शिफ्ट ड्यूटी करती हूँ, नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग इन विच यू आर इन्वॉल्व्ड, इफ यू हैव सेट द गोल देन you have to perform the action as well to achieve that goal. And this is the reason I am here to help you कि आप NORCET 7.0 अगर आपका goal है, so how strategically you can start your preparation. Like I was saying earlier कि there are lot of student जो अपनी जिनको ये पता ही नहीं होता कि what is the right way of preparing the NORCET examination or any other entrance examination. And there are still number of student जो यही सोचते हैं कि हम सिर्फ बीएससी की बुक्स को गो थ्रू कर ले. राइट. हमने वो जितना भी बुक से पढ़ा है वो अगर हमने पढ़ लिया वील एबल टू क्लियर द NORCET. नाउ हेयर दिस मिथ विच आई एम हेयर टू क्लियर दिस मिथ के ऐसा नहीं है. वी ऑल नो के एवरी पासिंग ईयर द NORCET लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट विद एवरी पासिंग ईयर. आई एम श्योर आपने अपने जो है सीनियर से या अपने कलीग से ये सुना होगा कि हर बार NORCET कुछ नया अपडेट, कुछ रीसेंट चेंजेस जो है अपने एग्जामिनेशन में इंक्लूड करते हैं. इफ यू आर नॉट अवेयर देन आई विल बी डिस्कसिंग द NORCET एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल इन दिस वीडियो. सो यस, हमें जब NORCET अपना जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफिकल्टी रेस कर रहा है, देन एज अ एस्पिरेंट, एज अ नर्सिंग एस्पिरेंट, इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NORCET देन वी हैव टू वी हैव टू ऑल्सो change our strategy. This is the reason why I really like in Nursing Next Live जो platform है, they keep on revising their strategy, they keep on working on their planning and strategy for preparation, ताकि हम जो best strategy है, जो best requirement है at present time related to the NORCET examination, उसके बेसिस पे हम पूरा का पूरा एक जो प्लेटर होता है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके, सो दैट दे जस्ट हैव टू प्रिपेयर एंड दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर. उनका जो वैल्यूएबल टाइम है वो अपने वैल्यूएबल टाइम को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट करें. This is the reason why I am here, right? So yes, if you have this goal that you have to clear NORCET in one go with a very good rank, then this video is definitely for you, and watch this video till end. I'll be sharing important strategy ke how we can prepare for NORCET 7.0. But before that, before I move to the strategy part, we should as a nursing aspirant, no matter आपने जो है पहले भी NORCET दिया है या you are the first
first time you will appear or attempt this NORCET examination as a nursing aspirant, if your goal is to clear NORCET 7.0, then before any strategy, before any preparation, the first and foremost thing is you should be aware about what is NORCET, what is their pattern of examination, right? So this is very important, and I really want every student should get familiar कि NORCET है क्या, NORCET का pattern of examination क्या है, what are the subject that you have to put more focus on, और कौन से pattern के question आते हैं, what is the level of difficulty. So yes, now with this, before we'll move to the strategy part, let us first understand what is NORCET. ये NORCET है क्या? So NORCET is basically, NORCET is a common eligibility test. And let me tell you कि ये जो NORCET examination है, this was started in the year of 2020. ये आपका जो है 2020 में सबसे पहले NORCET start हुआ था, right? So first NORCET was started in the year of 2020. So first NORCET was started in the year of 2020, जिसे NORCET 1.0 के नाम से भी जानते हैं. And what is this NORCET? Like I said, this is a common eligibility test, जिसे आप जो है स्टूडेंट जब भी क्लियर करता है इन दिस इनिशियल, जब ये स्टार्ट हुआ था NORCET, तो जब भी बच्चा इस एग्जाम को क्लियर करेगा वो बच्चा जो है एलिजिबल हो जाएगा कि जब भी एम्स के जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं इन द डिफरेंट स्टेट, वहां पर जब भी वैकेंसी निकलेगी, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पर देयर मेरिट लिस्ट, राइट? दिस इज व्हाट द NORCET एग्जामिनेशन जो ये निकाला गया था, ये एग्जामिनेशन जो था इस तरीके से कंडक्ट किया गया था कि रादर देन हर एक स्टेट अपने अपने एम्स का, जैसे एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स रायपुर हो गया, एम्स बिहार हो गया, एम्स दिल्ली हो गया, सो वी हैव lot of institute under AIIMS organization, right? And there are so many which are in the running situation, and there are so many which are under construction. So trust me, NORCET में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है एंड काफी सारी है, राइट? सो वी हैव टू इफ यू आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क फॉर इट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. वो अपने आप नहीं आएगी, आपको करना पड़ेगा मेहनत. एंड NORCET में क्यों स्टार्ट हुआ था? तो रादर देन अलग अलग स्टेट अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करे, देयर विल बी वन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे बच्चे जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे जिस जिस स्टेट में जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस वाज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड starting this NORCET test, right? So 2020 में start हुआ था. If I talk about अभी जो है आपका 2024 चल रहा है, एंड 2024 में आपका जो NORCET एग्जामिनेशन अभी जो NORCET एग्जामिनेशन होगा, इट इज 6.0. तो ये NORCET जो है 6.0 एग्जामिनेशन आपका होना है, विच इज इन 14th अप्रैल को ये एग्जामिनेशन होगा. सो यू कैन सी कि 2020 से जो एग्जामिनेशन हुआ, फिर वो अगले साल हुआ 21 में, देन 22 में हुआ, देन 23 में हुआ. अब जो 23 का एग्जामिनेशन था, लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि NORCET इज समथिंग कि दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पैटर्न, देयर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. सो जब 2023 में NORCET का एग्जामिनेशन हुआ, NORCET का जो है एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया, और जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि दिस इज जो NORCET एग्जाम होना है विल बी कंडक्टेड ऑन दिस डेट, उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई. व्हाट वाज दैट न्यूज? वो न्यूज थी कि फ्रॉम 2023 से NORCET एग्जामिनेशन आपका जो है 2 स्टेजेस में होगा. पहले स्टार्टिंग इनिशियली जब 2020 में NORCET हुआ था, तब एक ही एग्जाम था, एक बार एग्जाम दिया आपने, उसको क्लियर कर लिया ना, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट रेडी हुई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया. 2023 की अगर हम बात करें, सो इन द ईयर ऑफ 2023 फ्रॉम NORCET 5.0, NORCET 5.0 से ये जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 स्टेजेस में हो गया, स्टेज 1 एंड स्टेज 2.
Yes, this is the reason why it is important that we have to have some strategy. We should know the background of NORCET. We should know how to prepare for NORCET, and we have to be ready for such type of changes that NORCET is keep on implementing every time, right? So NORCET 5.0 में पहली बार NORCET को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया, जिसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट इज ये वाला जो पैटर्न नॉर्सेट ने इंप्लीमेंट किया था, दिस इज गोइंग ऑन विथ 6.2 एज वेल. जो अभी 6.2 एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी सेम दो स्टेज में होगा. सो विद दिस वी कैन प्रिडिक्ट दैट यस, गोइंग फॉरवर्ड जितने भी नॉर्सेट होंगे वो भी नाउ दो स्टेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, राइट? सो पॉइंट नंबर 1 विच यू नीड टू फोकस ऑन कि अब नॉर्सेट हमने ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है दैट नाउ गोइंग ऑन वट एवर नॉर्सेट विल बी कंडक्टिंग, दे विल बी कंडक्टिंग इन 2 स्टेज 1 एंड स्टेज 2, राइट? क्लियर? सो अब ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्या है उसको डिस्कस करने से पहले लेट अस नो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम नॉर्सेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है. स्टिल आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस कि मैम वेदर आई एम एलिजिबल फॉर नॉर्सेट और नॉट, राइट? सो देखो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपके जो नॉर्सेट का पूरा एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें दिया होता है. उसमें से आपको देखना है दैट वेदर यू आर फुलफिलिंग दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट. The first and foremost eligibility criteria में आपका educational qualification की बात करूं which is very essential. तो चाहिए क्या आपके eligibility criteria में? that you have a BSc degree. आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. सो आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ दिस इज नॉट इनफ, बिकॉज द ओनली पॉइंट जहां पे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता है वो पॉइंट है कि आपने 4th ईयर में हो, आप यू आर इन द 4th ईयर, आपका इंटर्नशिप का पीरियड चल रहा है, या आप पास आउट हो गए हो, यू आर पास आउट बट आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है. अगर आपके पास यू आर अ पास आउट स्टूडेंट बट स्टिल योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट देयर, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर दिस नॉर्सेट एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज मैंडेटरी कि आपके पास ये डिग्री हो और उसके मतलब आपने पास आउट कर लिया हो, उसके साथ साथ आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का. वी ऑल हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, हम सबको पता है. दिस इज समथिंग विच आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मच, क्योंकि हम जब भी पास आउट करते हैं, चाहे हम एमएससी पास आउट करें, एमएससी के बाद भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है और बीएससी के बाद भी मिलता है, राइट? सो अगर आपने बीएससी पास किया है, बीएससी के बाद यू शुड हैव योर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर. अब यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग होते हैं, इसको खासकर स्पेशली नोट करना, मैंने बीएससी पास किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं. आई हैव पास्ड माई BSc 3 years ago. मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफरी का जो नंबर है वो एक्सपायर्ड हो गया है, वो अब वैलिड नहीं है. तो क्या वो नंबर मैं दे दूं? इस केस में भी आपका जो सर्टिफिकेट, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वो कैंसिल हो जाता है. सो इट हैज़ टू बी वैलिड. आपको वो जो है एक्सपायर्ड जो हो गया, क्योंकि वहां पे डेट लिखी होती है कि ये अब तक चलेगा, यू हैव टू रिन्यू योर रजिस्ट्रेशन नंबर. तो इट इज इंपॉर्टेंट. देखो, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच somehow we neglect. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे neglect कर लेते हैं, especially after passing their BSc and going into the job, they are more into the job and they didn't get the time to go and update their registration number. But this is very important. You never know when any type of notification of entrance examination will come and you need to put your registration number there and the valid one, right? So if you are someone जिसने अभी तक registration number अपना renew नहीं कराया है, तो please get it done. वो renew कराइए, उसका process you can study on online as well. So ये renew होना चाहिए, valid होना चाहिए. These are the important essential criteria जिसमें आपका BSc degree हो, post basic हो. Along with this you should have a registration number.
राइट इसके साथ अगर आपने बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नहीं किया है, आपने जीएनएम किया है, अगर आपने जीएनएम किया है तो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जीएनएम जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। राइट कितने साल का? 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। राइट सो अगर आप जीएनएम है, आपने जीएनएम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, देन इसके साथ सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे यू कैन नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों नहीं है? बीएससी वालों के लिए तो यही था, बट जीएनएम वालों के लिए दे हैव एडेड वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज यू शुड हैव टू हैव 2 ईयर, मिनिमम 2 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही सबसे पहला स्टेप होता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नॉर्सेट। इफ यू आर फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी देन यस, जो आपने गोल 7.0 रखा है, दिस इज द राइट चॉइस, राइट गोल है, यू शुड गो with your goal, right? अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे, you are a second year student, you are a first year student or you are a third year student, then you have to wait, but you have to start preparing। अगर आपका goal it is to clear NORCET, regardless अभी मैं third year में हूँ, second year में मुझे क्या करना है, you should have this proper knowledge, right? So yes, this was the main eligibility criteria। अगर now let's talk about the examination pattern। Here I am not going into every bits of every piece of information of NORCET because otherwise हमारा जो strategically planning है हम वो बहुत lengthy कर लेंगे। So here I am discussing the important information related to NORCET, right? जो सबसे ज़्यादा important है वही मैं information यहाँ पे आपके साथ discuss कर रही हूँ। So NORCET की अब बात करते हैं the एग्जामिनेशन पैटर्न एंड स्कीम। लाइक आई सेड के नॉर्सेट 5.0 जब अनाउंस हुआ था विद नॉर्सेट 5.0 इन द ईयर ऑफ 2023, यहां पे ये अनाउंस हुआ कि दो स्टेजेस में एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। राइट स्टेज 1 को बोला गया था ये प्रीलिम्स है, स्टेज 2 को बोला गया था वो मेंस है। सो जब ये एक नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आया, एवरीबडी वॉज सो कंफ्यूज्ड, एवरीबडी वॉज एवरी सिंगल आई लिटरली आई फेल्ट दैट टाइम, क्योंकि वो जो एक नई चीज आपके एग्जामिनेशन में ऐड हो गई एंड यू वर लाइक प्रिपेयरिंग सो हार्ड फॉर एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट टू नो कि अब दो पार्ट में होगा पेपर। ऑफ कोर्स ये बहुत चैलेंजिंग था, बट अगेन हैट्स ऑफ टू ऑल द टीम एंड ऑल द सब्सक्राइबर, दे हैव वर्क सो हार्ड डे एंड नाइट प्रोवाइडिंग the content in the same pattern, and जितने भी selection हुए for 5.0 and I'm really happy for all of them, you can go and watch the interview session as well, so they can वहाँ पे उन लोगों ने और अच्छे से बताया हुआ है कि 5.0 का जब 2 stages में आ गया, so how they have balanced their preparation, right? एंड अब स्टेज जब आपका 2 स्टेजेस 5.0 में आ गया तो ये जो है इस तरीके से बहुत सारे आइडिया लगे दैट दिस विल बी द पैटर्न नाउ ऑन विद एवरी नॉर्सेट एग्जामिनेशन, विच इज नाउ ट्रू बिकॉज अभी जो 6.0 हो रहा है वो भी आपके सेम 2 पार्ट में हो रहा है। विद दिस वी कैन गेट एन आइडिया कि 7.0 एग्जाम भी 2 स्टेज में होगा। सो फर्स्ट एज अ नर्सिंग एस्पिरेंट वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली कि हमें 2 बार एग्जाम देना है, देयर इज नो वन टाइम examination। this is something which I want to tell to all the student जो नॉर्सेट के जिनके बारे में जिनको नहीं पता है, जिनको ये नहीं पता कि वो 2 बार एग्जाम होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिपेयर मेंटली के एग्जाम 2 बार देना है, एक बार प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। इफ अगर प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई होता है देन वी कैन गो फॉर मेंस, राइट? अब हमें समझना क्या है कि नॉर्सेट प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या डिफरेंस है एंड क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन लाया गया था इन दोनों स्टेजेस में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर समवन एक्चुअली जो जिसका सेट गोल है एंड प्रिपेयर करना है एंड क्लियर करना है, देन यू शुड हैव दिस क्लैरिटी कि क्या पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एवरीथिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रीलिम्स। हम सबसे पहले नॉर्सेट प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उससे स्टार्ट करते हैं कि इसका स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, राइट? देन आई विल टेल यू कि अभी रिसेंटली और क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स में
बेसिकली ये जो आपका स्टेज 1 था, वो स्टेज 1 को उन्होंने क्वालिफाइंग स्टेज बोला है। दैट मीन्स एक स्क्रीनिंग स्टेज होता है कि आप जब बोलते हैं कि हमने ये टेस्ट कर लिया, तो आपने स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग करके फिल्टर आउट कर लिए वो कैंडिडेट, दोज आर बेस्ट सूटेड फॉर मेंस, राइट। सो ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जहां पे आप जो है क्वालिफाई होके नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। प्रीलिम्स के एग्जाम से हम रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, फाइनल आपका स्कोर अनाउंस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाएगा। ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जो आपको सिर्फ मेंस तक ले जा रहा है, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो, राइट। सो दिस इज योर स्टेज 1। अब अगर इसकी बात करूं तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको जो अभी पता होने चाहिए, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए। सो देयर आर 100 क्वेश्चन जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। there is 1 mark given to 1 question and total 100 question है। of course there is negative marking क्योंकि सारा खेल नेगेटिव मार्किंग का ही है। so 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, राइट। so 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐड की गई है फॉर द 6.0 NORCET, देखो this is the reason why every time I tell the student that you need proper guidance. Without proper guidance it's very difficult to prepare for NORCET, right? So recently what the AIMS organization did is, अब AIMS ने क्या किया है कि जो 100 क्वेश्चन है उसको 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। What is this 5 सेगमेंट? So these are 5 सेगमेंट। अब आपका पूरा टेस्ट 5 सेगमेंट में होगा, हर एक सेगमेंट में 20 क्वेश्चन होंगे और आपको 18 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट का टाइम मिलेगा, और जब ये सेगमेंट 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप ये सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जा सकते हो। एक बार 18 मिनट कंप्लीट हो गए, आप उसके बाद वापस से यहां नहीं आ सकते। नाउ कई बार ऐसा होता है, हम प्रीवियसली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि पहले हम पूरा पेपर अच्छे से हमने 1 to 100 क्वेश्चन या 1 to 200 क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी जो हमें आता था टिक कर लिया, जो हमें नहीं आता था मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, आगे बढ़ गए, हमने पूरा पेपर देख लिया। अब जो हमने CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें हमने जो टिक किया था मार्क फॉर रिव्यू, उन क्वेश्चन पे हम गए, हमने दोबारा थोड़ा टाइम दिया, सोचा कि क्या हो सकता है, एलिमिनेट किया, 50-50 खेला, जो भी किया, उसके बाद हमने करेक्ट आंसर, जब हम श्योर है हमने करेक्ट आंसर दिया। दिस वाज द प्रैक्टिस विच एवरी सिंगल स्टूडेंट दे वर डूइंग व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी CBT। कोई भी CBT करे वो यही प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। बट एम्स ने अब क्या किया है कि आपके जो 5 सेगमेंट होंगे, हर एक सेगमेंट में 18 मिनट मिलेंगे। आपके पास सिर्फ 18 मिनट है वो 20 क्वेश्चन के लिए। एक बार वो 18 मिनट खत्म हुए, आपका ये सेगमेंट कंप्लीटली लॉक्ड हो जाएगा। नाउ आप वो सेगमेंट पे वापस नहीं जा सकते, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया है। दिस इज समथिंग अगेन अ न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एडेड रिसेंटली इन 6.0 एग्जामिनेशन, जिसमें आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली विद द टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, right? So this is the reason why I was telling that you should have enough strategy कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। You should have enough practice of the same pattern। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मुझे 20 क्वेश्चन 18 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं तो मुझे सेम एग्जैक्टली वो पैटर्न प्रैक्टिस करना है। बुक से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इट इज डिफिकल्ट कि मैं बुक में 18 मिनट का टाइमर लेके बैठूं और मैं वो कर रही हूँ, कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस होते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे नया पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को ऐड किया है अंडर द प्रीलिम्स एंड मेंस, जहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे इंस्टेड ऑफ सारे 100 क्वेश्चन 1 गो में मिले आपको, ऐसा नहीं है। अब आपको 5 सेगमेंट मिल रहे हैं, हर एक में 20 क्वेश्चन, 18 मिनट का टाइमिंग है, राइट। आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे एंड टोटल ड्यूरेशन आपका 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स होगा। सो 90 मिनट में टोटल 90 है, दैट मीन्स आपके पास तो सिर्फ 18 है 20 क्वेश्चन के लिए। आपको ये सोचना है इन योर माइंड, राइट। सो दिस इज योर रीसेंट चेंज इन द स्कीम ऑफ NORCET प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
नाउ अब प्रीलिम्स में हमने एग्जामिनेशन में क्या चेंज आया वो समझ लिया, कैसे क्वेश्चन आता, कैसे पेपर में क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, कैसे हम हर सेगमेंट को अटेम्प्ट करना है। अब बट विद दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द सिलेबस। प्रीलिम्स में आता क्या है, राइट हमें इतना पता है बस प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन है। मैडम ने अभी सिर्फ यही बोला कि मैम कि अभी सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या ये 100 क्वेश्चन सारे नर्सिंग सिलेबस के होंगे? बिकॉज नर्सिंग में तो हमारे पास सारा ही सिलेबस है, तो क्या सिलेबस होगा प्रीलिम्स का? सो अगेन दिस इज वेरी वेल रिटर्न, क्लियरली रिटर्न इन द नोटिफिकेशन के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। नाउ रिमेंबर दिस, सिर्फ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपके 80 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से होंगे और 20 क्वेश्चन आपके जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से होंगे। राइट, हियर यू कैन सी 80 क्वेश्चन आपका नर्सिंग सिलेबस कवर करता है एंड 20 क्वेश्चन आपका जो है जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कवर करता है। सो ये है यहाँ पे 80-20 जो आपको याद रखना है कि प्रीलिम्स के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज सबसे पहला स्टेज वही है, उसको जब मैं क्लियर करूंगी तभी मैं मेंस पे पहुंचूंगी। अगर मैं उसको क्लियर नहीं करती तो मैं मेंस पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। राइट, सो वी हैव टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजिकली कि जीके भी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रिमेंबर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क। सो जीके के क्वेश्चन है 20 एंड 80 आपका नर्सिंग का है। राइट, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। नाउ हियर अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स में पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कौन से ज्यादा पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी 5.0 में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था, हम जितनी भी साइंटिफिक टीम एंड द मास्टरमाइंड फैकल्टी दे हैव डिकोडेड उनको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझा। सो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें ज्यादातर, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ज्यादातर आपके जो है प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड वन लाइनर मींस लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे, बेस्ड ऑन द गिवन बिलो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग दैट द नर्स शुड थिंक ऑफ। इसका क्लिनिकल इसके साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगी। राइट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पेरिनियल केयर। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नॉर्सेट 5.0 में ज्यादा इंक्लूड किए गए थे प्रीलिम्स में, जिसमें स्किल बेस्ड थे, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड, मतलब जितने भी हमारे कोर नर्सिंग प्रोसीजर है उनके ऊपर फोकस किया गया था। मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया था। असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे थे। नाउ दिस इज द टाइम जब नॉर्सेट ने सबसे ज्यादा फोकस नर्सिंग में किया है असेसमेंट में। एंड यू नो असेसमेंट स्केल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, मसल पावर ग्रेडिंग स्केल, जीसीएस। अगर ये फाइंडिंग है तो क्या असेसमेंट होगी, आप क्या असेस करोगे। राइट, असेसमेंट फाइंडिंग ये है, उसके बेसिस पे क्या कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, व्हाट विल बी द इंटरवेंशन दैट वी कैन प्रोवाइड टू द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज असेसमेंट फाइंडिंग। सो ओवरऑल असेसमेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड यस, this time also with just like every other examination of NORCET, IBQ को भी include किया गया था, which is image based क्वेश्चन। सो इन टोटल प्रीलिम्स में भी 4 से 5 IBQ क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व थे इन द 5.0 प्रीलिम्स। राइट, तो सिमिलरली हमें पता है कि अब हमें किस किस एरिया पे फोकस करना है। वन लाइनर है आपके, जो है प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड है, IBQ इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन असेसमेंट, मेडिकल एंड नर्सिंग जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। सो दीज आर द पैटर्न जो आपका प्रीलिम्स में देखा गया था। अगर मैं डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, सो कितने डिफिकल्ट थे, क्या बहुत ही हायर लेवल पेपर था, क्या बहुत ही इजी पेपर था, या मॉडरेट था। सो देखो दैट टोटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड। आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, आपकी बहुत अच्छा होल्ड है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है, देन नो मैटर आप पेपर कैसा भी आ जाए, यू विल फील द पेपर विल बी लाइक इजी, आपको इजी लगेगा। राइट, बट अगर हम क्वेश्चंस को देखें, जो आपके टीचर्स होते हैं दे कैन टेल यू बेटर कि किस तरीके का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है।
एंड व्हेन वी डिकोडेड दिस नॉट सेट प्रीलिम्स एंड मेंस को जब डिकोड किया, तो प्रीलिम्स में जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था वो समवेयर बिटवीन मॉडरेट था, इजी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत हायर साइड पे नहीं था, लेकिन मॉडरेट था, सो दैट पीपल कैन अटेम्प्ट, राइट, उसको अटेम्प्ट कर सके एंड उसको उस स्टेज को क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज में जा सके। क्लियर? तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट था, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज की, हम उसी तरीके के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स के लिए, राइट? सो पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट, कि जब आप प्रिपेयर करोगे, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर प्रिपेयरिंग, आप किसी ऐप से प्रिपेयर करो, किसी कोचिंग से प्रिपेयर करो, किसी बुक से प्रिपेयर करो, आप किसी से भी प्रिपेयर करो, लेकिन यू शुड हैव दिस इन माइंड कि प्रीलिम्स के लिए पहले जो स्टेज 1 क्वालिफाइंग स्टेज है, अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूं तो मुझे किस तरीके के एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, राइट? सो दिस इज योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अगर मैं उसके क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, सो दीज आर द परसेंटेज विच वी रिक्वायर एज पर द कैटेगरी। आपको मिनिमम इतना परसेंटेज चाहिए क्वालिफाई करने के लिए स्टेज 1, राइट? एंड देयर मे बी कंडीशन जहां पे आपने क्वालिफाई कर लिया बट समहाउ आपकी मेरिट लिस्ट में वो स्कोर नहीं आया और आपसे ज्यादा किसी ने सिक्योर कर लिया, तो वो एलिजिबल हो जाएगा, राइट? सो ये आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग हो गया स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 के लिए हम किसको बुलाते हैं? दिस इज बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग कि स्टेज 2 में कौन से क्वालिफाइड कैंडिडेट आएंगे? तो जो भी, जितनी भी सीट होती हैं, जितनी भी टोटल सीट नोटिफिकेशन में निकली, उससे 5 गुना ज्यादा स्टूडेंट को जो है क्वालिफाई किया जाता है सेकेंड स्टेज के लिए। 5 times more than the seat which is added in the notification. So 5 time total seat से 5 total seat के 5 time हमने जो है कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए, एग्जाम के लिए, they will be eligible, वो एलिजिबल हो जाते हैं स्टेज 2 में आने के लिए। सो दिस इज अबाउट योर स्टेज 1 कि स्टेज 1 में क्या है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया कि वो किस बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, जो कि हमारी मेंस है। दिस इज द फाइनल स्टेज, राइट? यहाँ पे आ जाएगा आपका मेंस, तो ये है आपकी फाइनल स्टेज, जहां जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप नॉर्सेट आपने क्लियर किया या नहीं किया। सो प्रीलिम्स के बेसिस पे नहीं हुआ, प्रीलिम्स करने के बाद ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, नो। एम्स के बाद सिलेक्शन होता है, एम्स के बाद आपकी रैंक निकाली जाती है, एम्स के बाद, मेंस के बाद जब मेंस क्लियर करते हैं तब हमें पता चलता है दैट यस आपका ये स्कोर है, आपकी ये रैंक है, नाउ यू हैव क्लियर्ड, यू हैव सिक्योर्ड दिस रैंक इन मेंस, राइट? सो अगर हम मेंस की बात करें, उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंप्लीटली सेम। आपको मेंस में भी 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, जैसे आपकी उसमें थी 1/3 विल बी योर नेगेटिव मार्किंग, राइट? सो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क है, 100 क्वेश्चन है। अब ये 100 क्वेश्चन सेम प्रीलिम्स की तरह 5 सेगमेंट में होंगे, विच इज 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट्स में मिलेंगे, और हर एक जो सेगमेंट होगा वो लॉक हो जाएगा आफ्टर 18 मिनट। दैट मीन्स यू कैन नॉट गो बैक। अगर आपने कोई भी रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन डाला है तो आप वो नहीं कर सकते, 18 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा, राइट? सो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट the level of the level of question, the pattern of question and the syllabus। ये चीज हमें यहाँ फोकस करनी है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या टाइम रहेगा प्रीलिम्स पे। तो सब कुछ सेम है बट सिलेबस इज डिफरेंट। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस के लिए यहाँ पे जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा था, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन में 80 नर्सिंग के थे एंड 20 विल बी फ्रॉम जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। बट मेंस में आपका जीके नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, रीजनिंग नहीं है, होल सोल 100% सारे 100 जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे। एंड इन मेंस इट इज स्पेशली हाईलाइटेड इन एडवर्टाइजमेंट, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, इट इज हाईली, दे हैव पुट स्पेशल एम्फेसिस ऑन दैट पार्ट कि जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसमें ज्यादातर कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया जाएगा,
राइट, जो हमारे कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं उनको ज्यादा फोकस किया जाएगा इन योर मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द नर्सिंग सब्जेक्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा मेंस का, सो जो रीसेंट आपका मेंस एग्जामिनेशन हुआ है वो पेपर विच इज अ बिट ऑन मॉडरेट टू हायर साइड. पूरा मॉडरेट नहीं था, कुछ कुछ जगह पे कुछ क्वेश्चन हायर एंड पे थे, राइट, कुछ आपका मॉडरेट लेवल में था. तो इट इज समवेयर मॉडरेट टू हायर साइड. इजी तो बिल्कुल भी नहीं था. इजी हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो, देयर इज नो सच थिंग इजी. मॉडरेट टू हायर एंड में था, सो दैट वी कैन वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन, क्योंकि हमें उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. क्लियर. सो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी था फॉर मेंस का. एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेंस में स्पेशली क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ऐड किया गया था, जहां पे एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ नर्सिंग एस्पिरेंट, यू हैव टू यूज योर क्लिनिकल जजमेंट. अब यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे जो मेमोरी बेस्ड थे, जैसे हैंड हाइजीन का ड्यूरेशन क्या होता है, अगर सी डिफिसाइल है तो आप किस तरीके की हैंड हाइजीन यूज करोगे. नो, सबसे ज्यादा परसेंटेज था क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, जहां लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्पिल हो गया है. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन कि स्पिल हुआ है. स्पिल होने के बाद दीज आर द पॉइंट, इसमें से एज अ नर्स आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा. हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन देंगे, कवर करेंगे, एंड द जो ऑप्शन थे दे आर सो रिलेटेड टू ईच अदर. The student find difficulty in identifying the correct answer. So this is the reason why if you are preparing for 7.0, then you should have enough practice of such type of क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ टेस्ट, ताकि जब हम ये टेस्ट को अटेम्प्ट करें इन अ फाइनल सीबीटी फॉर्म तो वी शुड हैव इनफ होल्ड इनफ नॉलेज के इस टेस्ट को, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, हमें पहली बार देखने को ना मिले. तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड इंक्लूड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस शेड्यूल में. सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, जिसमें एज अ नर्सिंग प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा. आपको सिनेरियो दिया है, उस सिनेरियो के बेसिस पे यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपको सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना है, विच इज वेरी कॉमन नाउ अ डे, राइट. तो काफी कॉमन है ये क्वेश्चन. सो जो प्रीलिम्स में आए थे उसके साथ, वो पैटर्न के साथ जो पैटर्न ऐड किया गया मेंस के लिए इज योर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को ऐड किया गया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जो हमारा स्टेज 2 का नॉर्सेट का जो ये क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो क्या हैं आपके, सेम उसी तरीके से रहेंगे. दीज आर द परसेंटेज जिसके बेसिस पे कैटेगरी के बेसिस पे कुछ परसेंटेज को सेट किया गया है बाय द एम्स, जो हम कंसीडर करते हैं क्वालिफाइंग, एंड उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट को बनाया जाता है, राइट. रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, कभी कभी ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे और मेरी जो कोई और कलीग है या कोई और किसी के साथ टाई हो गया, मेरे और मान लीजिए सबीना है, सबीना के साथ आकांक्षा है, दोनों के सेम नंबर आ गए, उस केसेस में क्या करेंगे. अगर आपके सेम नंबर आ गए तो सेम नंबर में सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ होता है, जो भी बड़ा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है डेट में. सेकेंड, अगर इसमें भी इससे भी हम रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, टाई को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, देन इससे नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसने सबसे ज्यादा गलत आंसर किए. जिसने कम गलत आंसर किए होते हैं उसको प्रेफरेंस दी जाती है. दिस इज द वे दे सॉल्व द रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, राइट. yes, this is a very important slide. No matter you are preparing for coaching or you are preparing for anywhere, as a nursing aspirant, I really want every single student should know about the subject ऑफ नॉर्सेट. सो आप अगर नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड इफ यू हैव नो आइडिया कि नॉर्सेट में कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, देन यू आर प्रिपेयरिंग विदाउट अ विजन. यही, क्योंकि हम इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं, हमें विजन ही क्लियर नहीं है हमारा हमें फोकस नहीं पता कि ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, राइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट एज ए नर्सिंग एस्पिरेंट, स्पेशली दोज हु आर they will start their preparation for 7.0. they should have this clarity that which subject are of higher importance, which subject put more they have more subject weightage in NORCET, right. So generally मैं ये ट्राइएज कैटेगरी की तरह बताती हूँ स्टूडेंट को, बिकॉज ट्राइएज से हमें समझ में आता है ज्यादा अच्छे से.
राइट। ट्राइएज में वी ऑल नो ट्राइएज मीन्स टू सॉर्ट आउट, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो हम पहले सेग्रीगेट कर लें कि सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देनी है, फिर उससे कम किसको देनी है, और सबसे कम किसको देनी है, और किसी को देनी ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे हमें ट्राइएज जो प्रोसीजर होता है वो काफी हेल्प करता है कि हम सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कर ले, वो सब्जेक्ट हमें पता चल जाए जो रेड कैटेगरी में है। राइट, एंड वी ऑल नो रेड कैटेगरी मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, हाई फोकस। रेड मींस हाई फोकस, सबसे ज्यादा किसको देना है। उसके बाद वी हैव येलो कैटेगरी, येलो कैटेगरी मतलब रेड से कम। देन वी हैव ग्रीन कैटेगरी and at last we have black category. So these are the category of triage. राइट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी, बट यहाँ पे मैं ट्राइज में किसी पेशेंट को नहीं रखने वाली, मैं सब्जेक्ट को रख रही हूँ सो दैट वी कैन हैव क्लैरिटी। मेरे जो है रेड सब्जेक्ट कौन से हैं, बिल्कुल लाल जिसपे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फोकस करते हैं। रेड में अगर बात करूँ, वो सब्जेक्ट जो किसी भी कीमत पे यू कैन नॉट स्किप these subject if you are preparing for NORCET। ये सब्जेक्ट तो हम भूल कर भी स्किप नहीं कर सकते। एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड बहुत ही एंड मोमेंट पे उनके मैसेज आते हैं कि मैम मेरा मेडिकल सर्जिकल पूरा रह रहा है नॉर्सेट के लिए, मेरा पूरा ओबीजी रह रहा है। सो स्टूडेंट वी नो कि हमारे सब्जेक्ट जो हाई वेटेज वाले हैं वो हम सबसे जो है फोकस करना है और वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सो यू शुड हैव दिस क्लैरिटी। सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट जहां पे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर दोज? योर MSN, FON, पीडियाट्रिक, MHN, OBG एंड फार्मा। राइट, अब अगर मैं देखूं तो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट को मैंने रेड कैटेगरी में डाला है। ऑल्दो कभी कभी फार्मा को हम येलो कैटेगरी का भी पार्ट बनाते हैं, बिकॉज फार्मा जो है ऑन एंड ऑफ है। कभी फार्मा के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है, किसी एग्जामिनेशन नॉर्सेट में फार्मा के क्वेश्चन कम होते हैं, बट वी हैव टू कीप द फार्मा इन रेड कैटेगरी। राइट, सो इसीलिए फार्मा को हम रेड एंड येलो दोनों में इंक्लूड करके रखते हैं, एट लास्ट में रखते हैं। देखो ये ऑर्डर है जहां पे मैंने सीक्वेंस बताया। सबसे हाई वेटेज विल बी फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फॉलोड बाय फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देन पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक रिसेंटली जो है ऊपर आया है ओबीजी के रिप्लेस में, बिकॉज ओबीजी पहले काफी क्वेश्चन आते थे, 20 क्वेश्चन, 23-25 क्वेश्चन आते थे ओबीजी के, बट नाउ रिसेंटली इन द लास्ट 3 ईयर ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं देखूं 4.0, 5.0 और 3.0 में ओबीजी का जो वेटेज है वो कम हुआ है। बट दैट डज नॉट मीन कि ओबीजी का अगर वेटेज कम हो गया तो उसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हेयर टू गाइड यू। वेटेज कम हुआ है बट वी नेवर नो, क्या पता दोबारे जो अगला जो नॉर्सेट होगा उसमें उसका हाई हो जाए, बिकॉज ओबीजी वी ऑल नो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन नर्सिंग। राइट, दिस इज द रीजन आई हैव केप्ट द ओबीजी इन द रेड कैटेगरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज समवेयर इज अ वेरी स्टेबल सब्जेक्ट, बहुत ही स्टेबल सब्जेक्ट है। हर बार स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्सेट 1.0 इन 2020 ईयर, तब से लेके अब तक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हर बार एक फिक्स्ड क्वेश्चन नंबर आते हैं, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 8, 10, 12, इस तरीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं। व्हेन वी नो कि हमारे इस सब्जेक्ट से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, देन वी शुड हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट। जब हमें पता है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने हैं, तो उसको थॉरली पढ़ना है, उस पर ज्यादा फोकस देना है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट जो कि ब्लैक या ग्रीन कैटेगरी में है। राइट, सो एज अ स्टूडेंट नो मैटर यू आर यू विल प्रिपेयर थ्रू गाइडेड और आप खुद से भी पढ़ रहे हो, सो दिस वीडियो इज स्पेशली टू हेल्प ऑल दो स्टूडेंट जो अभी अगले नॉर्सेट 7.0 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं। नो वरी, बट यू शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस, यू शुड नो कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस देना है। राइट, सो ये आपके रेड कैटेगरी वाले सब्जेक्ट हो गए। अगर मैं बात करूं नाउ येलो कैटेगरी वाले सब्जेक्ट में, तो येलो कैटेगरी में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग रिसर्च, these all are yellow category subject।
राइट, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को मैंने रेड में नहीं डाला है बिकॉज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग थ्रू आउट द नॉर्थ सेट उसका जो वेटेज है वो बहुत मिनिमल है, राइट। हर बार आपके जो है 4-5 के क्वेश्चन रेशो में क्वेश्चन कम्युनिटी से पूछे जाते हैं। सो येलो, इसीलिए येलो में रखा है, ग्रीन में नहीं रखा। सो कम्युनिटी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग रिसर्च को आपको येलो कैटेगरी में रखना है। अब आप बोलोगे मैम सब तो येलो में आ गया, ग्रीन में बचा क्या? So we have, yes we do have, we have nursing management। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, so we have nursing management in the green category। So let me write down in green, nursing management and nursing education को हम green में रखेंगे, ये आपका green category हो गया। इसके अलावा genetics के question, एक क्वेश्चन अभी तक जेनेटिक्स का आया है, एक क्वेश्चन, बट वो आया है, राइट। वो एक क्वेश्चन भी वैल्यूएबल है, तो वी शुड हैव पेडिग्री को लेके अगर क्वेश्चन आए तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक क्वेश्चन, ताकि हमें एक आंसर, एक मार्क मिल सके। सो जेनेटिक्स एंड रिसेंटली इन नॉर्सेट, जो अभी नॉर्सेट हुआ है, उसमें फॉरेंसिक नर्सिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आया, विच इज द न्यूली सब्जेक्ट एडेड इन योर रिवाइज्ड आईएनसी करिकुलम, राइट। जो रिवाइज्ड आईएनसी अभी जो सिलेबस है उसमें जो फॉरेंसिक नर्सिंग को ऐड किया गया है, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट में फोरेंसिक से लेके एक क्वेश्चन आया। सो दीज आर कंसीडर योर ग्रीन कैटेगरी सब्जेक्ट जिन पे हमें फोकस करना है, बट एज कंपेयर टू रेड एंड येलो कम फोकस करना है, बट करना है। उनमें हमें टाइम कम देना है भले, लेकिन हमें उन्हें भी कवर करना है। एंड इन प्रिपरेशन देयर इज नो ब्लैक कैटेगरी, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो वी रियली डोंट वांट। इफ यू हैव टाइम, इनफ टाइम, देन देयर इज नो ब्लैक कैटेगरी फॉर अस। हमें सारी जो रेड, येलो एंड ग्रीन कैटेगरी है उसी में ही बाइफर्केट करके सब कुछ कवर करना है। सो दिस इज व्हाट आई कॉल द ट्राइएज फॉर नॉर्सेट सब्जेक्ट। इन अ वे वी शुड नो हायर प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी एंड द लीस्ट प्रायोरिटी, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे नॉर्सेट का पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑन विच वी हैव टू फोकस मोर। As a student, like I said, either it will be one day or day one. It all depend upon you. आपके ऊपर ही ये सब कुछ है। यू हैव टू, यू आर द ओनली वन हु हैज़ टू मेक दिस डिसीजन कि क्या मुझे ये अभी से ही स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, या फिर लेट द नोटिफिकेशन कम। अभी तो बहुत टाइम है नॉर्सेट 7.0 में। एंड लेट मी टेल यू, आप अगर सीरियसली, इफ यू आर द वन हु हैव सेट दिस गोल, देन यू शुड बी अवेयर अबाउट जो टेंटेटिव डेट आपके नॉर्सेट 7.0 के लिए दी गई है, विच इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। 7.0 की जो टेंटेटिव मंथ है, जहां पे बोला गया है कि जो नेक्स्ट नॉर्सेट होगा 7.0 विच इज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सो यू ऑल कैन हैव दिस आइडिया कितना टाइम बचा है, ये क्लैरिटी आपको अच्छे से हो गई होगी। सो 7.0 के लिए अब आपको डिसाइड करना है कि या तो डे वन है आपका, या वन डे जब नोटिफिकेशन आएगा तब सोचेंगे, तब इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। एंड ट्रस्ट मी, एज अ मेंटोर, एज अ मास्टरमाइंड फैकल्टी, मैंने वो सारे स्टूडेंट के मैसेजेस को रीड किया है जहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि वी हैव ओनली 15 डेज, वी हैव ओनली 30 डेज, मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ूँ और आई रियली वांट टू क्लियर दिस नॉर्सेट, राइट। तो वहाँ पे वो जो सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। एट टाइम स्टूडेंट के पास टाइम होता है बहुत ज़्यादा, वो दे कैन इन्वेस्ट देयर टाइम इन प्रिपरेशन, बट जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट डिसाइडेड, दे हैव नॉट मेक अप देयर माइंड कि उन्हें करना है या नहीं करना, दे विल बी इन डिलेमा कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस और वी शुड कंटिन्यू आवर प्राइवेट जॉब। इसी वजह से वो टाइम को वेस्ट कर देते हैं, विच आई रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो टू डू द सेम, राइट। ट्रस्ट मी, क्योंकि कई बार जब मैं आपको ये बोल रही होती हूँ तो मैं स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से ही आपको ये कन्वे कर रही हूँ, उन सारे मैसेजेस को पढ़ने के बाद ही आपको ये बोल रही हूँ कि वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है एज अ स्टूडेंट कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं करी, मेरे पास टाइम था, मैंने क्यों डेली 2 घंटा 3 घंटा दे के क्यों नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा भी इसी साल नॉर्सेट क्लियर हो जाता, मेरा भी नॉर्सेट में कॉन्फिडेंटली बैठ पाती, उसको क्लियर कर पाती। एंड वन मोर थिंग, दिस इज समथिंग विच वन ऑफ माई
सीनियर सेड टू मी कि जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और जब एग्ज़ाम में जब आप सर उठा के ऊपर चारों तरफ देखते हो एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इज़ बिजी इन राइटिंग समथिंग एंड यू आर द ओनली वन हु नोज कि मुझे कुछ नहीं आता, राइट और वो इस टेंशन में होता है और इस इतना गिल्ट फील होता है कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की, मैंने क्यों टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दैट दिस इज इन योर हैंड. You have to decide and you have to make it a day one, not one day, right? So time is with you. You have time, you can prepare, you can cover all these green, yellow or red category subject within this time in a very beautiful and in a very planned manner. All you have to do is just decide, make your decision कि आपको prepare करना है. No matter कहाँ से prepare करो, बस prepare करना है. अगर prepare करना है ठान लिया, अपने आप रास्ता बनता रहता है, right? And for any guidance, any support, we are here to help you. हम हैं आपके साथ. We are every single step. आपको कुछ problem आ रही है, आपको कुछ समझना है, every single mastermind faculty, they have their social media account and the student keep on contacting us के हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये करना है, अब आगे क्या करना है. So we are here to help you, we are here to guide you. The only thing is we are waiting for your decision to take this decision that yes 7.0 को clear करना है with a very good rank, right? So now let us understand that how we can prepare for 7.0 examination. What will be the strategy for this examination, because scheme of examination बदल चुका है. तो अब हमें अपनी pattern, अपनी strategy में भी change लाना पड़ेगा. देखो हर it is important that we have to we have to change ourselves with time. ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं चेंज नहीं करूंगी देन समवेयर वो मुझे ही इम्पैक्ट करेगा. अगर मैं अभी भी वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ 90 मिनट में और आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो अब 20 क्वेश्चन 18 मिनट में हो गया है, तो मेरे लिए वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्टफुल होगा. क्योंकि जब मैं वो नए पैटर्न को एक्चुअल में फाइनल सीबीटी देने बैठूंगी, क्या पता मैं वो टाइम को मैच ना कर पाऊँ. मेरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया, आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, right? So it is important that we should also change and we should adapt the same changes that NORCET is implementing in every passing year of examination, right? So yes, with this I am here to explain you about the MLB Pro plan. So MLB Pro plan is a completely new and based on all the recent changes that are implemented in NORCET entrance examination के basis पे ये plan को बनाया गया है. And with this plan I am I am sharing this information that Dr. Sakshi ma'am and I will be the batch mentor under this MLB Pro plan, and we are here, we will guide you from from A to Z at every single step, not till your NORCET but to whenever you are, even after your NORCET examination 7.0 examination, we are here for you. So again, this is one of the very important information which I really want to share with you all, that Dr. Sakshi ma'am and I will be there under this plan MLB Pro as a batch mentor guiding the students and subscriber of plan MLB Pro. अब ये जो plan है MLB Pro, how it will help and how we are preparing for this NORCET 7.0 under this plan. One of the very important feedback that we keep on receiving from our subscriber is, जितने भी subscriber जो NORCET के लिए prepare करते हैं, ideally there are situation, कुछ जो है percentage of subscriber they are they are working somewhere in the private sector. कुछ लोग होते हैं जो dedicatedly whole soul they are preparing for NORCET, right? So we have a mixed audience. हमारे पास हमेशा mixed audience होती है जो दोनों ही कैटेगरी में फॉल करती है. But for all of them जो need होती है, they want more and more they want more and more teacher interaction. That means they want more live sessions so that they can interact with the mastermind faculty, they can interact with their teacher, the subject teacher, and they can if they have any query. अगर मैं कुछ क्लास में पढ़ रही हूँ, जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है which everybody want के अगर मैं कभी भी कोई प्रिपरेशन करूँ तो मुझे एक ऐसा
एनवायरनमेंट मिले कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ, मुझे जहाँ पर भी डाउट आया देन एंड देयर मैंने वो पूछ लिया टू माई फैकल्टी और टू माई टीचर. दिस इज द रीजन वाई दिस सेम स्ट्रैटेजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ वी हैव implemented in Plan MLB Pro for 7.0. and what is this? इस बार MLB Pro में जो भी इस प्लान के अंदर आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी, जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी. दैट मीन्स जो आपके टीचर होंगे, हर सब्जेक्ट के जो मास्टरमाइंड फैकल्टी होंगे वो लाइव आएंगे, आपको लाइव पढ़ाएंगे, आपके डाउट को देन एंड देयर क्लियर करेंगे, right? But this is not the only feature and there are n number of feature which I will be covering in this video. So सबसे पहला, yes, this is one of the most important feature जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बेस या बेस strong foundation बनाता है, that is live classes by the mastermind faculty, right? So अगर मैं MLB Pro की अप्रोच की बात करूँ, देखो कभी भी हम कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, नो मैटर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NCLEX के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा प्रिपरेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं. एंड व्हाट आर दोस 4 इंपॉर्टेंट पिलर एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप एज अ स्टूडेंट प्लान बना रहे हो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको पता है कि आपको किस किस तरीके से मूव करना है, कितना किस टाइम पे क्या करना है, उसके बाद जब एग्जाम के 1-2 मंथ होंगे तब क्या करना है, राइट? What are those important approach और pillar? So first and foremost is हमें प्रिपरेशन करने से पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है. नो मैटर वी हैव डन द BSc, वी हैव डन MSc एज वेल, हमने BSc कर रखा है, MSc कर रखा है, स्टिल वी कैन नॉट से दैट कि मेरा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है. वी ऑल एग्री विद दिस कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, आवर मोर फोकस इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन, गेट द मार्क्स के हम पास हो जाए, फेल ना हो. हमारा होल सोल ज्यादा फोकस उस पर होता है रेदर देन टू गेट द कंसेप्ट क्लियर, राइट? ऐसा नहीं है, सब में होता है, बट ज्यादा फोकस, ज्यादा वी आर इंक्लाइन टूवर्ड गेटिंग द मार्क्स एंड टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? सो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनके हमें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, या फिर ऐसा ये कंडीशन होती है कि हमने BSc क्लियर कर लिया, नाउ इट इज लाइक अ वेरी क्वाइट लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा गैप हो गया है कि हमने वो पढ़ाई नहीं, वी आर नॉट इन टच विद द बुक्स, हम सब कुछ भूल चुके हैं. एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन थिंग्स, हम भूल जाते हैं बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन आर डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्किंग हमारी जो चल रही है, उसके बेसिस पे हम क्या, मैंने पीडियाट्रिक में क्या पढ़ा था वो सब भूल गई, राइट? थोड़ा बेस याद होता है बट एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं होता. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग, एनी एग्जामिनेशन, द फर्स्ट एंड foremost step is you have to build a very conceptual theoretical and practical knowledge of all subject, all topic. आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. आपका जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट वी ऑल नो, अभी हमने वो ट्राइज पढ़ लिया था, हर सब्जेक्ट के टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट सेंट्रिक. अब देखो यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी. कैसे? हमारे INC सिलेबस को अगर हम उठाएं तो INC सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करूं, उसमें हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट भी है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, UG के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट दे आर नॉट कंसीडर एज अ हाई हील टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नॉर्सेट, क्योंकि उनसे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है. या फिर 10 साल की बात कर ले तो 10 साल में एम्स में ऐसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन या हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, इन पे क्वेश्चन ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपके यूनिवर्सिटी में जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगेन वी नीड अ गाइडेंस. हमें ये चाहिए कि हमें नॉर्सेट के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वाइज, वो पता होना चाहिए. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आपके पास यू शुड हैव अ लिस्ट कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट के अंदर मुझे पढ़ने हैं. नॉट ओनली पढ़ना है, मुझे अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, राइट? सो दिस इज ऑलवेज अप्रोच नंबर 1, विच इज वॉच एंड लर्न. सो हेयर इन प्लान MLB Pro वी आर हैविंग लाइव सेशन.
जहाँ पे आप लाइव इंटरेक्ट करोगे मास्टरमाइंड फैकल्टी से। जो है इंटरेक्ट करने के साथ आप जितने भी कंसेप्ट हैं आप उनको जो है अपने स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उनको जो भी आपने पढ़ रखा है उसको और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे। इसके साथ नाउ दिस इज नॉट द ओनली pillar or approach which makes the preparation complete, but this is only the first pillar. इसके साथ हमारे important अगला pillar क्या है, which is your assess and practice. Again, बिना practice के NORCET preparation is incomplete. बिकॉज एट द एंड, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि बच्चे होते हैं कि दोज हु नो कि हमें, अगर मैं बुक पढ़ लूंगी सारी, ब्रूनर एंड सिद्धार्थ पढ़ ली, मैं नॉर्सेट दे दूंगी। कैसे दे दोगे, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी है एमसीक्यूज की, और नॉर्सेट में तो आपको एमसीक्यूज पढ़ना है ना। आई टेल यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल हियर। एक बच्चे ने सीपीआर पूरा पढ़ लिया, राइट, सीपीआर का पूरा टॉपिक पढ़ लिया फ्रॉम ए टू जी, सीपीआर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सीपीआर पढ़ने के नेक्स्ट डे उसके एक फ्रेंड ने उसको एक क्वेश्चन भेजा मोबाइल पे स्क्रीनशॉट में, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। अब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब उस बच्चे ने देखा, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया एंड ही विल नॉट बी एबल टू आंसर, जबकि सीपीआर पूरा पढ़ लिया था। क्यों नहीं आंसर कर पाए, क्योंकि दे हैव नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द प्रैक्टिसिंग पार्ट। हमारे कंसेप्ट क्लियर तभी बोले जाएंगे जब हम वो कंसेप्ट को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें, एंड वी शुड हैव दिस आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सीपीआर में आपको जो है क्वेश्चन दिया है सिनेरियो बेस्ड, अब वो जब तक आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट आइडिया कि एमसीक्यूज कैसे होते हैं। आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो कंक्रीट तरीके से माइंड में नहीं बैठेंगे इफ यू विल नॉट डू द प्रैक्टिस। एंड वन मोर पॉइंट, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग कि मैं पहले सारे सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं, जब मान लो कि मैंने 4 महीने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करूंगी सिर्फ 2 महीने, उसके बाद मैं पेपर दे दूंगी। नो, this is a wrong practice. If you are preparing by yourself or from any other source, then you don't follow this practice from day one. जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, तभी से ही आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। डे वन से ही अपने आप को जो है इन्वॉल्व करना है, ताकि आपको हैबिट हो, आपका पैटर्न, आप फैमिलियर हो जाओ किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, राइट। सो एमसीक्यूज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड हेयर अंडर दिस प्लान MLB Pro, later on I will tell you that we have included variety of tests so that you can get complete exposure के नॉर्सेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो कोई भी पैटर्न स्किप ना हो, इसीलिए वी हैव एडेड डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेस्ट। ये है आपका सेकेंड एलिमेंट। इफ आई टॉक अबाउट अदर देन दिस, और क्या चाहिए, आपने कंसेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। नाउ अब अगेन योर एक होता है जैसे केक, द केक इज इनकम्प्लीट विदाउट अ चेरी। जब तक चेरी नहीं लगती तो केक इनकम्प्लीट है। सिमिलरली आपकी जो भी प्रिपरेशन है, इट फील्स लाइक इनकम्प्लीट विदाउट रिविजन, बिकॉज द मोर यू रिवाइज द better you can, or the more you can retain the concept. So keep on revision, keep on revising is the important pillar, जहाँ पे हम जो है जितना भी हमने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, उसे रिवाइज करते हैं, so that we can make sure कि हमारा जो भी हमने पढ़ा है वो भूलेंगे नहीं, और वो easily उसको हम आंसर कर देंगे। So yes, revision is very important, that we have included under plan MLB Pro। and अंडर रिविजन, लेट मी टेल यू दैट हर बार रिविजन में मास्टरमाइंड फैकल्टी के साथ वी केम अप विद द फास्ट ट्रैक सेशन, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, विच इज MCQ टेस्ट एंड डिस्कशन, MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन होते हैं सारे सब्जेक्ट के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है सारे क्लासेस के बाद दोबारा से जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में रिवाइज किया जाता है। आफ्टर दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट पिलर जो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है, विच इज योर रीड एंड रिटेन द स्टडी मटेरियल, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वी ऑलवेज फील इनकम्प्लीट जब तक बुक नहीं होती हाथ में, राइट। जब तक पेन एंड पेंसिल और कॉपी नहीं होगी, इनकम्प्लीट फील करेंगे। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन, वी हैव एडेड द रीड एंड रिटेन द स्टडी मटेरियल, विच इज अ वेरी गुड स्टडी मटेरियल, द रिविजन बुक अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस पल। आई शो यू लेटर ऑन कि किस तरीके से हम वो इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो येस, दिस इज द होल सोल अप्रोच ऑफ प्लान MLB Pro। नाउ अगर हम ओवरव्यू देखें MLB Pro में हमें अप्रोच के बाद क्या क्या होगा, कैसे क्या मिलेगा, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंसाइट कि हमारा MLB
MLB Pro में क्या क्या होने वाला है. We have live classes, we have live test, revision, Monday booster, test and discussion and special doubt session. So one by one let me discuss कि ये है क्या. First is the live classes. Like I was saying in the starting that MLB Pro, one of the unique features, क्योंकि इसके अलावा और भी यूनिक फीचर है, बट येस वन ऑफ द यूनिक फीचर इज द लाइव क्लासेस. नाउ जनरली मतलब इसका मतलब क्या है, क्या मैं डेली लाइव आऊंगी? सो येस, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जहां पे हर एक मास्टरमाइंड फैकल्टी अपने सब्जेक्ट को लाइव आके कवर करेंगे. सो आई टेल यू माय एग्जांपल. माय सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. सो मैं 90 आवर्स का जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस लूंगी, जिसमें मेरे कुछ सेट डेज होंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल, 15 दिन में मैं आपके साथ डेली कनेक्ट करूंगी, डेली क्लास लूंगी, डेली टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉट सेट सेंट्रिक है वो डिस्कस करूंगी आपसे. आपकी कोई डाउट है तो डाउट रिजॉल्व करूंगी, राइट. सो दिस विल बी योर लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस के साथ आपको इंटीग्रेटेड क्विज मिलेगा. लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मॉर्निंग में क्लास लिया है हैंड हाइजीन के ऊपर, राइट, लाइव मैंने आपको हैंड हाइजीन पढ़ाया, आपने अपने डाउट को पूछ लिया कि आपके क्या डाउट थे हैंड हाइजीन से रिलेटेड. इसके बाद आपको एक क्विज मिला जो कि MCQ बेस्ड था, प्रैक्टिस टेस्ट था. तो आपने हैंड हाइजीन कंसेप्ट बिल्ड किया और आपने यहाँ से MCQ की प्रैक्टिस कर ली कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैंड हाइजीन पे, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर ऑफ प्लान MLB Pro, विच इज लाइव क्लासेस. देन वी हैव लाइव टेस्ट एंड वेराइटी ऑफ टेस्ट, राइट. सो येस, जो इंटरेक्टिव क्विज था वो भी इज अ पार्ट ऑफ लाइव टेस्ट, जो आपको हर क्लास के बाद एक टेस्ट मिलेगा वेयर यू कैन असेस कि मैंने जो मॉर्निंग में या इवनिंग में जो क्लास ली थी वो मुझे कितने अच्छे से समझ में आई. एंड यू नो, आफ्टर गिविंग द टेस्ट यू कैन इमीडिएटली, जैसे आपका जो नेक्स्ट डे क्लास है, आप अपने उस डाउट को, जो भी आपका डाउट था वो आप फैकल्टी से कंफर्म कर सकते हो, उससे डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि लाइव डाउट सेशन भी होंगे. लाइव रिविजन एंड डाउट सेशन, लाइक आई वाज सेइंग, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने जैसे बताया कि जब हमारा एग्जाम यू नो 1 or 2 month बिफोर योर NORCET 7.0 वी विल बी हैविंग द रिविजन सेशन. उस टाइम पे हमें रिविजन पे फोकस करना होगा और हम अपनी सारी कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस खत्म कर चुके होंगे. तो इस टाइम पे हमारा रिविजन एंड प्रैक्टिस विल बी द मेन फोकस एरिया, जहाँ पे हम फास्ट ट्रैक सेशन करेंगे. ऑल न्यू फास्ट ट्रैक सेशन होंगे एंड फास्ट ट्रैक सेशन में सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी, सो दैट यू कैन रिवाइज every topic, you can revise every important topic of all the subject of nursing, right? Not only nursing but the GK and aptitude reasoning as well. Yes, so these are the important unique feature. Other than that अगर मैं बात करूँ, so पूरे प्लान में what all you are getting, so पूरे प्लान में आपको जो है डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. देन रिविजन के फॉर्म में आपको फास्ट ट्रैक सेशन मिलेगा, वो भी लाइव मिलेगा फॉर रिविजन ऑफ NORCET 7.0. एंड रिविजन ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ रिविजन होगा एंड वी बिलीव इन मल्टीपल सेट ऑफ रिविजन. सेकेंड सेट ऑफ रिविजन में यू विल बी गेटिंग गोल्डन पॉइंट चांटिंग और NORCET में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका रिकॉल मिलेगा, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल. If I'll talk about the test, like I was saying कि टेस्ट में बहुत ही variety of टेस्ट इंक्लूड किया गया है, so that we can, you know, as a student I can have the exposure to different pattern of question, ताकि किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन आए I'll be able to answer it. मैं अपनी जजमेंट स्किल को इतनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि मैं NORCET का जब मेन CBT दूँ तो मुझे पता हो कि किस तरीके से इसको आंसर करना है. Right, so you will be getting this subject assessment test. Now what is the flow of these tests? ये इसका flow कैसा रहेगा? Let me give you an example. Let's take an example. आपका जो है fundamental of nursing की live class started है. So before your live class आपको एक test मिलेगा जिसका नाम होगा subject assessment test fundamental of nursing का. Now what is this
टेस्ट, कि ये टेस्ट क्यों हमने क्रिएट किया है? द रीजन बिहाइंड क्रिएटिंग दिस सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट इज द स्टूडेंट कैन असेस देमसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं. लाइक आई वाज सेइंग कि हमने सारे नर्सिंग में सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, बट वी हैव, हमें जो है वो कितना कंसेप्ट क्लियर है पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए. एज अ स्टूडेंट मुझे जो है प्रिपेयर करना है नॉर्सेट के लिए, मैंने F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट उठाया. अब पहले मुझे ये अपने आप को पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितनी नॉलेज है, कौन सी चीज़ मुझे आती है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. Right, this is the reason why we have added first the subject assessment test through which the subscriber can assess themselves that F1 में ये टॉपिक हैं जिनको मुझे बिल्कुल ब्लैंक है, एंड व्हेन यू नो जब लाइव क्लास होगी तो मुझे स्पेशल अटेंशन देना है इन टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ दिए या मुझे बिल्कुल आंसर नहीं मिला. राइट, सो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट. आफ्टर सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट के बाद आपकी क्लासेस होंगी. नाउ डेली जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, मतलब डेली जो भी आपका शेड्यूल है, जैसे डे 1 में आप CPR पढ़ रहे हो, डे 2 में आप इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ रहे हो, डे 3 में आप पेशेंट सेफ्टी पढ़ रहे हो, तो डेली बेसिस पे जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं उसके बाद लाइव क्लास के बाद आपके पास लाइव टेस्ट होगा. ये लाइव टेस्ट होगा टॉपिक असेसमेंट टेस्ट, and surprisingly you will be getting 100 topic assessment test of all subject. मतलब जितने भी सब्जेक्ट की जो भी लाइव क्लास होगी उसके बाद, क्लास के बाद आपको एक लाइव टेस्ट मिलेगा जहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है उसी के ही क्वेश्चन होंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस कि आपको कितने अच्छे से वो कंसेप्ट समझ में आए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम अपने टॉपिक को, जो हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, उसको असेस कर सकते हैं. राइट, सो देयर विल बी टॉपिक असेसमेंट टेस्ट एवरी डे आफ्टर द लाइव क्लास. राइट, अब मेरा 15 डे हो गया, मैंने F1 की पूरी क्लासेस ले ली. आफ्टर दिस F1 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट है, जस्ट एन एग्जांपल, F1 की जब क्लासेस हो गई तब आपके पास आएगा सब्जेक्ट रिविजन टेस्ट. व्हाट इज दिस सब्जेक्ट रिविजन टेस्ट? यू नो आई ऑलवेज बिलीव, लाइक आई सेड, दैट रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कि अच्छा मेरा ये पूरा मैंने पढ़ लिया है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, सो वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वी कैन नॉट मूव ahead. Right, this is the reason why we have included the subject revision test. So after completing every subject, हर सब्जेक्ट के बाद आपका एक सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट की क्लास होगी. सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप अटेम्प्ट करके ये पूरा क्लियर कर सको, अपने आप को इवैल्यूएट कर सको कि ये सब्जेक्ट मेरा कितना स्ट्रॉन्ग बना. राइट, क्या डाउट है, क्या नहीं है, मुझे फर्दर फैकल्टी, जो सब्जेक्ट फैकल्टी है उससे अगर मुझे कोई डाउट है तो मुझे क्या डाउट है, क्या कंफर्म करना है. Right, other than that you will be getting high heel topic test. Now you know these are very important. I really like attempting high heel topic test because नॉर्सेट में हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आते हैं. बाय डिफॉल्ट हर साल उनसे एक क्वेश्चन आता है. राइट, एंड व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक? लाइक फॉर एग्जांपल एक्सरे, ECG. Recently, जैसे last time also when I was discussing the strategy and revision strategy with the student NORCET aspirant, तो मैंने तब भी बोला था कि अब जो है वो level of examination set हो गया है जहाँ पे we can expect one or two question where we need to identify the condition on the basis of X-ray imaging. Right, तो वो yes ये start हो गया है. Now we need to upgrade ourselves. हमें अपना level of knowledge, level of understanding, level of practice बढ़ाना पड़ेगा, and that can only be you know can possible जब हम एक खुद से decision ले that yes ये हम करना है, हमको NORCET अगर clear करना है. So एक question आपका X-ray से expected है. There are lot of time CPR के ऊपर question आता है, arrhythmia के ऊपर question आता है. Right, so ये कुछ perioperative nursing I feel like is a very important topic. Emergency and trauma. So ये कुछ ऐसे topic हैं जो सबसे ज्यादा हाई हील्ड टॉपिक है. हर बार क्वेश्चन आता है जिसको हमने सेपरेटली एक टेस्ट फॉर्म किया है, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. लाइक ये पेरी ऑपरेटिव का टेस्ट है, ये ड्रग कैलकुलेशन एक टेस्ट है जो पूरा ड्रग कैलकुलेशन का ऊपर है. तो आपको पता होगा कि ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन सारे इसी टेस्ट में मिलेंगे. एक टेस्ट है जहां पे आपको ड्रग ऑफ चॉइस, डाइट ऑफ चॉइस, डोज ऑफ चॉइस, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे. सो दीज आर
the high heel topic test based on NORCET previous year question. Then we have included system wise test. You know, lot of time we have you received the request from the subscriber के at times they want के system wise test practice करने हैं कि cardiovascular अगर system है तो मैं जब cardiovascular practice कर रही हूँ तो cardiovascular से related anatomy physiology, cardiovascular से related pharma के question, medical surgical के question, pediatric के question, FON के question, सारे ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन एक टेस्ट में हो. दिस इज द रीजन वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द टेस्ट सिस्टम वाइज टेस्ट, जहां पे हर एक सिस्टम चाहे कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई, ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइन, वो सारे सिस्टम वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें सिर्फ मेडसर्च नहीं बट फार्मा, एनाटमी, ये सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके सिस्टम वाइज टेस्ट प्रिपेयर किया गया है. देन इमेज बेस्ड, लाइक आई सेड कि हर नॉर्सेट में 4 से 5, स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, 4 से 5 क्वेश्चन इमेज बेस्ड होते हैं. इसीलिए आपको जो है इमेज बेस्ड टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट के, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर image based question. Then national NORCET skill assessment tests, these are based on the grand test pattern, जो subject wise नहीं होंगे बल्कि एक ऐसा टेस्ट होगा जहाँ पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, and time to time you can you can evaluate yourself whether you are going on a right direction or not. This is the reason why we have added the NNSET national NORCET skill assessment test. इससे होगा क्या, इससे एक sense of awareness create होता है. जब हम ये टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं आपकी रैंकिंग आती है, आपको पता चलता है कि यू आर एट विच लेवल, अभी और कितना हार्ड वर्क देना है, अभी और कितना जो है कंसेप्ट को क्लियर करना है. सो येस, NNSET आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर रिविजन, अब दीज आर द टेस्ट दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम डे 1. हर सब्जेक्ट वाइज आपको डे 1 से ये टेस्ट मिलेगा. ये आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्चुअल बिल्डिंग. बट व्हेन इट कम्स टू रिविजन वाला जो पार्ट होता है विच इज 1 or 2 month बिफोर योर एग्जामिनेशन, उस टाइम पे वी हैव टू होल सोल फोकस ऑन द रिविजन एंड प्रैक्टिसिंग MCQ. तो उसके लिए वी हैव सुपर 36 टेस्ट सीरीज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड टेस्ट फोकस करना है. उस टाइम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए ग्रैंड टेस्ट, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे चुके हो, सिस्टम वाइज टेस्ट दे चुके हो. अब आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देने हैं. रिवीजन के टाइम पे आप ग्रैंड टेस्ट दोगे, जहां पे सारे सब्जेक्ट के बेसिस पे एक टेस्ट बनाया जाता है जो कि सिमिलर पैटर्न होता है नॉर्सेट का, राइट. एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए आप क्लिनिकल बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कोर क्लिनिकल सब्जेक्ट के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया जाएगा. Right, so these are the variety of tests that we have included and you are getting in this plan MLB Pro. And yes, जो मैंने part बोला था, the read and retain the study material, so you will be getting these revision note and practice poll. If I'll talk about practice poll में आपको probable questions मिल रहे हैं based on नॉर्सेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग प्रोबेबल क्वेश्चन, जिसमें हर सब्जेक्ट के प्रोबेबल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स हैं, राइट. जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑक्सीजन थेरेपी, LMA मास्क, राइट, और जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब सक्शनिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, तो उन सब के फ्लैश कार्ड मिल रहे हैं, सो दैट यू कैन हैव रिवाइज, मेक योर रिविजन पार्ट मोर स्ट्रॉन्ग. अदर देन दैट MLB Pro के अंदर आपको प्लान C+ भी मिलेगा. नाउ व्हाट इज दिस प्लान C+? आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो प्लान C+, बट दोज हु आर न्यू एंड दे हैव नो आइडिया अबाउट प्लान C+. सो प्लान C+ जो है एक ऑलरेडी नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का एक बहुत ही व्हाट शुड आई से इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्लान, जिसमें C+ में आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट मिलता है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा. सो इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ MLB Pro में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जितना भी रीसेंट अपडेट, जो भी डेली लाइव क्लासेस है वो, इसके साथ आपको C+ भी मिल रहा है, आपको रिविजन नोट भी मिल रही है एंड प्रैक्टिस पोल भी मिल रहा है. So to make your preparation more strong, you are getting everything in one platform. Other than that, अगर मैं extra edge content की बात करूँ, because we always believe to give quality rich content, but
टू मेक इट मोर कंप्लीट हम हमेशा एक्स्ट्रा एज कंटेंट को इंक्लूड करते हैं, सो दैट स्टूडेंट कैन फील कि हम हर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो। बिकॉज यू नो एज अ स्टूडेंट जब हम एक स्टार्ट करते हैं एक जर्नी को, मैराथन को, अपने प्रिपरेशन मैराथन को, वी कीप ऑन यू नो नीड सम मोटिवेशन, वी कीप ऑन we required as a student, we required a push on every you know on frequent basis, on frequent interval हमें एक push चाहिए होता है, एक motivation चाहिए होता है, because the journey और marathon is quite big, quite long, जहाँ पे काफ़ी ups and down आते हैं। as a student we sometime we feel low, sometime we feel lost, sometime we feel कि नहीं हो रहा है, let's just quit, let's just you know drop this idea। so yes, ये सबके साथ नॉर्मली होता है, बट फॉर दिस फेज एज अ यू नो एज अ स्टूडेंट व्हाट वी वांट दैट समवन should be there for us, who can guide us, who can keep on motivating us, who can you know who will be giving us a push, no you can do it, you can do it, and who will be keep on reminding us that you can clear the NORCET, just trust your instinct। So yes, in the extra age content we have included everything। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेशल टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो होगा बाय द बैच मेंटोर, जहाँ पे जो हमारे नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट थे उनके क्वेश्चन को, उसी टेस्ट को हम जो है डिस्कस करेंगे इन अ वीडियो फॉर्म, इन अ क्लास फॉर्म, लाइव फॉर्म, जहाँ पे जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन में आपका गलत आंसर है, वाई यू नो वो गलत क्यों आपने किया, उसके कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। देन प्रोग्रेस रिव्यू क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोग्रेस रिव्यू क्लासेस के बेसिस पे ही वी कैन आइडेंटिफाई वेदर वी आर गोइंग, हम जो है हमें और कितना यू नो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। ऑलवेज रिमेंबर लाइक वी हैव 5 फिंगर एंड एवरी फिंगर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सिमिलरली एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरी इंडिविजुअल, दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट। सिमिलरली द प्रोग्रेस रिव्यू क्लासेस आर इंपॉर्टेंट टू यू नो पुश योर सेल्फ टू, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट somehow they know कि their weakness is this, but they are you know they are not accepting it कि हमारी ये weakness है। This is the reason why we have progress review classes, to keep on telling the student कि you have to you know you are doing good in this area but you have to focus this area as well, right। और आप कितना और आपको ज़रूरत है आगे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। With this we have Monday Booster, the special session by the batch mentor। And what is this Monday Booster? So every Monday I will be coming live and interacting with you all and motivating you, so that I will be giving you an overview के NORCET में क्या क्या अपडेट हुआ है, हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, which subject, which topic, which question, which pattern of MCQ we need to include in our preparation। So every Monday in Plan MLB Pro I will be coming live and interacting and giving you the guidance and support। along with that आपके स्पेशल टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो होंगे जिसमें हर सब्जेक्ट के रिमेंबर मैंने बोला था व्हेन जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होगा एक सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट होगा। एंड व्हाई द सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम वो टेस्ट को देते हैं तो हमने ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया है। अगर वो पढ़ने के बाद जब हम रिवीजन टेस्ट देते हैं और अगर हमें लगता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुझे दोबारा से जो है मेरा डाउट है मुझे क्लियर करने हैं, सो फॉर दैट वी हैव स्पेशल टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट रिवीजन टेस्ट, जहाँ पे स्टूडेंट कैन यू नो क्लियर कि ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी आया, ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। सो यस they can cover this through this special test and discussion video। other than that we have subject wise special doubt session, चाहे हर एक सब्जेक्ट का जो आपका फंडामेंटल है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है या OBG है, तो उसके बेसिस पे हमारे स्पेशल डाउट सेशन होंगे। यू कैन हैव मोर क्लैरिटी जब आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा देन एंड देयर, राइट। अब बोनस कंटेंट में यस फ्रॉम डे 1 यू विल बी गेटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग थ्रू आवर रिलेशनशिप मैनेजर, थ्रू मार्गदर्शक एंड थ्रू योर बैच मेंटर। सो यू नो everyone is there to help you, to guide you, to motivate you at every single step whenever you feel like okay whether I'm doing good or not, then everybody is there to help you। You will be getting nursing procedure video, these are simulation based video, because why we have added this
दिस सिमुलेशन बेस्ड वीडियो, इफ यू विल रिमेंबर द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आई सेड कि अभी जो है स्किल बेस्ड नर्सिंग प्रोसीजर के क्वेश्चन ऐड करती हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो कोर सब प्रोसीजर है जैसे सक्शनिंग, ट्रिक्योस्टमी केयर, राइट, ब्लड सैम्पलिंग, तो ये प्रोसीजर के जो वीडियो हैं आपके, जो जैसे ये प्रोसीजर को ये होता है वो सिमुलेशन बेस्ड वीडियो मिलेंगे, ताकि हर एक स्टेप की क्लैरिटी हो सके कि जब क्लोज सक्शनिंग करते हैं देन व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ क्लोज सक्शनिंग, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, लाइकवाइज, सो यू हैव मोर क्लैरिटी. Right. Other than that, yes, you are getting the podcast content as well, जहाँ पे you can listen all the go, you can prepare no matter you are traveling or you are doing anything, just with the podcast you can revise your content. So this is the bonus content that you will be getting, and these are the actual under the live classes, the live classes hours that you will be getting, and you will also be getting the recorded hour of Plan C+. Like I said, MLB प्रो में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड आपको C+ का कंटेंट भी मिलेगा. सो लाइव में नर्सिंग फाउंडेशन में 90, एनाटमी फिजियोलॉजी 30 एंड बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन 18. सो दीज आर बेसिकली द एंटायर टोटल आवर्स जो आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं. एंड द आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो नॉर्सेट के हिसाब से ही प्रिपेयर किया गया है कि F1, बिकॉज आई सेड दैट F1 इज अ रेड सब्जेक्ट, रेड कैटेगरी सब्जेक्ट, दैट मीन्स आपको इंपॉर्टेंट कितना देना है उसके हिसाब से ये आर्ट्स को यहाँ पे फ्रेम किया गया है. सो येस, दीज आर योर कंसेप्चुअल लर्निंग सब्जेक्ट वाइज जिनके आर्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं. मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ देन 108 आवर्स आपको मिलेंगे, राइट, क्लियर. मंथ वाइज इफ आई टॉक अबाउट स्केड्यूल क्या होगा, सो मंथ वाइज सब्जेक्ट को बाइफरकेट किया गया है दैट यू विल हैव मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट, दोनों ही एक बैलेंस वे में चले. यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट एंड यू कैन लर्न बेटर. सो वी हैव प्रिपेयर द मंथ वाइज कैलेंडर इन अ वे दैट देयर विल बी माइनर एंड मेजर बोथ द सब्जेक्ट. सो अप्रैल मंथ में यू विल बी हैविंग योर सब्जेक्ट, वी आर स्टार्टिंग विद एनाटमी फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन आपका कंटिन्यू रहेगा मई एंड जून में, बिकॉज वी डोंट want in one go कि हम फाउंडेशन कंप्लीट कर दें एंड देन उसके बाद आप भूल जाओ. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस्ड. कई बार ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरी क्लासेस स्किप हो गई या मेरी क्लासेस तो हो गई हैं F1 की बट मैं भूल गई, अब मुझे दोबारा से अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है. दिस इज द रीजन वाई वी हैव फॉर्मुलेटेड एंड वी हैव प्लेस्ड द सब्जेक्ट वेरी स्ट्रैटेजिकली सो दैट स्टूडेंट वोंट फॉरगेट एनीथिंग, स्टूडेंट हैव देयर कंसेप्ट क्लियर एंड दे कीप ऑन रिवाइजिंग, राइट. सो ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे फॉर अप्रैल, मई एंड again May and June में you have mental health, community, pathogenetics and pediatric nursing. Going forward आपके जून में सबसे मेजर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं which is your OBG, medicine, pharma, microbiology and GK reasoning. So these basically was the मंथ वाइज कैलेंडर ऑफ एवरी सब्जेक्ट के कौन से मंथ में हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है. नाउ लाइक आई वाज सेइंग कि NN सेट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ हम NN सेट कवर करने वाले हैं जिसका टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियो भी होगा जिसके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा. तो दिस इज द एक्चुअल स्केड्यूल ऑफ NN सेट जो आपको मिलने वाले हैं. प्रीलिम्स और मेंस की फॉर्म में मिलेंगे, दोनों ही फॉर्म में मिलेंगे, राइट. Now, what is new in Plan MLB? MLB Pro में हमने बहुत सारे फीचर डिस्कस किए. द यूनिक फीचर दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन दिस प्लान. सो अदर देन दैट देर इज वन मोर वेरी surprising element and very new element that we gonna be implementing in this Plan MLB Pro, and that is NNL classroom. Now what is this NNL classroom? Before that let me tell you that as a student if I talk about myself, अगर as a student मैं preparation करती हूँ किसी examination की, so at point I really want to maintain a discipline classroom setting. जैसे I really want कि मुझे जो है मेरी attendance हो, मुझे कोई जो है बताता रहे कि मुझे पढ़ना है, मेरा ये time है class का, so I'll be more active,
राइट मेरे ब्रेन को पता है, आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड के अटेंडेंस लगेगा, मुझे पता है कि मेरा ये क्लास का टाइमिंग है, मुझे पता है मेरा टेस्ट अब लाइव होगा और मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है मेरी क्लास का, मुझे पूरा शेड्यूल पता है, मेरे सिस्टम पे, मेरे मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे पूरा शेड्यूल है कि आज के दिन आपको ये पढ़ना है, आज के दिन आपका ये टेस्ट है. सो इट इटसेल्फ मेक मी के एक पुश देगा कि नहीं, मुझे आज का स्केड्यूल पूरा करना है, मुझे गोल अचीव करना है. सो ये एक एड ऑन मोटिफिकेशन है, या इटसेल्फ एक फॉर्म ऑफ मोटिफिकेशन है, फॉर्म ऑफ मोटिवेशन है, या फिर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन है जो क्रिएट करेगा स्टूडेंट में थ्रू दिस NNL क्लासरूम, विच इज़ अ वेरी यूनिक फीचर न्यूली एडेड इन द नर्सिंग नेक्स्ट लाइव अलॉन्ग विद नर्सिंग नेक्स्ट लाइव को जो एप्लीकेशन है. सो लाइक आई वाज सेइंग कि आपको लाइव टेस्ट मिलेगा, यू कैन हैव रियल टाइम चैट with the mastermind faculty because a lot of student want कि हमें नंबर चाहिए. So instead of this you can have a real time chat after your class, live class in this NNL classroom. आपके पास पूरा कैलेंडर होगा जहाँ पे पूरा मंथ का पूरा डेली स्केड्यूल आपके पास होगा. आज ये क्लास होनी है, ये टेस्ट होना है, आपकी अटेंडेंस होगी, आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है. आई अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं जहाँ पे पूरा दोज हु आर प्रिपेयरिंग डेडिकेटेडली, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियो जो पूरा एक डेस्कटॉप होता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली फुल, जहाँ पे उनका कैलेंडर है, दे हैव ऑन स्क्रीन, दे हैव प्रॉपर शेड्यूल. सो वो सारी चीज़ें आपकी NNL क्लासरूम में कवर होने वाली है. This is one of the very unique feature that is a new one implementing in Plan MLB Pro. Right? So add-on feature की मैं बात करूँ तो yes, Plan C plus you will be getting जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है, टेस्ट है, NNSAT है, बुक मार्क एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, एंड यस एक्सप्रेस क्वायरी सपोर्ट जो आपका स्टैंड अलोन फीचर है नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का, यू विल बी गेटिंग इन दिस प्लान MLB Pro में आपको मिलेगा. नाउ द स्टार्टिंग डेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने एज अ स्टूडेंट ये जो है बोला था कि कई बार ऐसा होता है एज अ स्टूडेंट कि हम बहुत ज़्यादा जो है लेट ज्वाइन करते हैं, या कई बार हम जो है हम डिसाइड नहीं कर पाते कि वेदर वी हैव टू गो फॉर दिस और नॉट. इस चक्कर में क्या है कि हम स्किप कर देते हैं डेट को, एंड हम जब बहुत क्लोज होते हैं तब ज्वाइन करते हैं. उस टाइम पे एंजाइटी ये होती है कि सारी क्लासेस निकल गई. सो इसीलिए अगेन टू अवॉइड दिस सिचुएशन, लेट मी टेल यू द क्लासेस लाइव सेशन will be starting from 23rd of April. This is very important and this is the reason why I want all of you to watch this video completely, ताकि आपको ये पता हो कि 23rd से लाइव क्लासेस चलेंगी, एंड 23rd से यू हैव टू बी ऑन स्क्रीन, यू हैव टू बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशन, यू हैव टू बी ऑन योर टोज. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ you have decided that this is your day one, you have to clear NORCET 7.0 in one go with a very good rank, then yes, 23rd, be ready for 23rd. यहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं लाइव, right? So yes, this is the date which I am announcing here. And last but not the least, we should also be aware about that who all are teacher, who all are mastermind faculty, with whom we are interacting and who all are taking the live classes. So let me again show the slide of this mastermind faculty. So yes, I along with Dr. Sakshi ma'am will be there from day one to guide you at every single step as a batch mentor, and along with us we have the team of mastermind faculty, and in this I specially want to welcome Dr. Deepak Marwa sir, Dr. Ankit Goyal, Dr. Preeti Sharma, and Miss Manoranjani, Miss Mithilesh, Miss Vanita as a new faculty, those who have joined the family of Nursing Next Live. And we all know, so again I really want to welcome all our new faculty of Nursing Next Live mastermind, right? So these are your mentor, these are your mastermind faculty who will be there to guide you, who are ready to motivate you, who are ready to teach you, who are ready to brush up your concept, but all depend upon your decision, right? Clear? So these are your mastermind faculty, and yes, this is a very important slide which I have intentionally kept at the last. The reason why, because I really want that
this is possible that your photo can be here on this slide, and this is possible. आपकी भी photo यहाँ हो सकती है with all India rank 1. It is not something which is impossible. This is quite possible. बिल्कुल possible है if you have that will. आपके पास वो will होना चाहिए, self believe होना चाहिए, and you have took the decision for that. So ये तीन चीजें important है, will, आपकी self belief and your decision plays a very important role, and you can be here on this screen with this rank. So everything depend upon you and your decision, right? So yes, with a really proud moment for Nursing Next Live, with 1,000+ selection in the NORCET previous year examination, and I'm really happy and congratulate to all the nursing aspirants, those who have worked so hard, those who have believed in Nursing Next Live, that they have thoroughly they follow the strategy and the guided study plan that was prepared by the mastermind faculty and the scientific team of Nursing Next Live, and they secured and successfully posted as a nursing officer in AIIMS. So again, congratulations to each and every subscriber of Nursing Next Live. Now this is all about the plan MLB Pro, and this is, I'm sure this will be helpful, and you can have, if you have any doubt, you can ask your query and related to anything under plan MLB Pro. So I'm sure this will help you out in making the decision, because everything lies on your decision, whether is day 1 or 1 day. Right. So with this, now let us proceed with all the subscriber of plan MLB Pro, those who have joined us. First and foremost, let me welcome you all, and you have decided and you have taken a very right choice. So let me tell you that now you have started your preparation journey, though we have starting our classes from 23rd, the live session, but before that you should know कि हमें करना क्या है, right? So today is like 10th of April. हमें 10th से लेके you have before 23rd हमारा एक guided study plan I'll be sharing you, and you will be getting this in PDF format through your relationship manager, so that you can have idea कि every single day आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, right? So yes, this is the guided study plan you will be getting, but before that always remember that discipline. In the starting itself, I have told you that discipline is the bridge between the goal accomplishment, between the goal and accomplishment. If you have set the goal, but you are not consistent, you are not dedicated toward your preparation, you have not maintained the discipline, then you won't be able to accomplish that goal. It is mandatory that you should have to have that discipline in order to achieve your goal. Always remember, right? So these are the guided study plan day wise schedule which I have prepared, and you will get these schedule through your relationship manager, right? But before that, again, for all the subscriber of plan MLB Pro, let me say that now you have started your preparation journey, so you should have some set rule. देखो, everything whatever we are doing, it has to have some rule, because without rule कोई भी चीज जब हम prepare करते हैं, we are not able to do it completely unless and until we'll not follow some rule. So likewise for your preparation journey, I really want every student to follow some rule. And what are those rules? Number one, you have to set simple and achievable goal. You are working in a private hospital and you have 8 or 12 hours shift duty, और आपने goal रखा है that every day I will give 10 hours or maybe 12 hours. That is not possible, right? So be practical. Forget procrastination. You have to be practical in your life. Set those goals which are practicable and practically achievable. जो आप achieve कर सकते हो वही goal set करो. And always start with short goals or small goal. जैसे for example, day 1 में I have decided that I will study only for half an hour or maybe for 1 hour. So in day 1 I have decided this. If this I will achieve, that means
नेक्स्ट डे आई हैव दिस इज माई बेंच मार्क, आई हैव सेट दिस गोल, आई हैव अचीव दिस गोल, नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, इसको मैं डबल कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, राइट? अगर आप पहले ही दिन 12 घंटे रख दोगे और 12 घंटे में से सिर्फ हाफ एन आवर पढ़ोगे, दैट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट इन योर माइंड। आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे कि मैंने गोल इतना ज्यादा सेट कर दिया और मैंने पीनट को अचीव किया है, सो बहुत ज्यादा सोचने में आप टाइम वेस्ट करोगे। ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, धीरे धीरे वो स्मॉल स्टेप कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है, सो इसीलिए start with small step, set some simple and achievable goal, right? Then make a plan and follow it, whatever plan you are making. जैसे let's take an example that I am a working नर्स एंड आई एम वर्किंग इन प्राइवेट सेटिंग, एंड मेरा आज का जो दिन है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है। आफ्टर माई मॉर्निंग ड्यूटी आई हैव सेट दिस प्लान कि मैं 3 आवर्स अपने डेडिकेटेडली पढ़ाई को दूंगी, जिसमें मैं 1 आवर में MCQ प्रैक्टिस करूंगी, 2 आवर्स में मुझे ये पढ़ना है। दैट इज योर प्लान। सो अगेन प्लान शुड बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड अचीवेबल। तो आपको अपने जो है डेली प्लान बनाने हैं, उसको फॉलो करना है डेली बेसिस पे, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, योर टाइम कितना आप दे सकते हो। देन अदर देन दैट यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी रैंडमली स्टार्ट कर दिया। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। हमें पता है कि मुझे ये पढ़ना है, देन फॉलो इट, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टे ऑर्गेनाइज्ड। स्टेब्लिश डेडलाइन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अनलेस एंड अंटिल यू विल नॉट टेल योर ब्रेन कि मुझे जो है एग्जाम देना है, तो आपको जो है अगर आपका 14th, आपको ये पता नहीं होगा कि 14th अप्रैल इज द डेट, जब तक उससे पहले मुझे अपना काम खत्म करना है, यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश योर वर्क, क्योंकि आपने यू हैव इंडिकेटेड योर ब्रेन के दिस इज द डेडलाइन, बिफोर दिस डेडलाइन एनी हाउ आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू इंक्लूड डेडलाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना प्लान बनाया कि 3 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना है, आपने डेडलाइन दिया कि 11 बजे तक मुझे अपना ये 3 घंटे का प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। सो योर ब्रेन नोज के 11 बजे डेडलाइन है, कंप्लीट करना है, वो उसी तरीके से ऑटो पायलट मोड पे रन करेगा, राइट? दीज आर एक्सरसाइजेस दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट during our preparation journey. Then plan your day a night before. This is also very important so that we can have, we can start our day without wasting time on planning. जब भी end of the day होता है, अगले दिन की planning तभी कर लेनी है। You have the schedule, you have everything. आपको पता होता है कि अगर आप जो है होल सोल प्रिपेयर कर रहे हो नॉर्सेट के लिए, you know your entire day, आपका पूरा दिन पता है, मेरा कोई फंक्शन नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मुझे किस तरीके से डिवाइड करना है। This is how you plan अब बिफोर अ डे बिफोर। इस तरीके से हम मैनेज करते हैं टाइम को, ताकि ज्यादा टाइम हम प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर सके। देन ब्रेक डाउन बिग टास्क एंड टेक रेगुलर ब्रेक। देयर इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। एक बार क्या है, एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं 5 घंटे पढ़ती हूँ। ये सुन के सामने वाले जो कलीग था उसने बोला मुझे भी 5 घंटे पढ़ना चाहिए, इसने जो है ये वाला एग्जाम क्लियर किया था, अब मैं भी 5 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। उसने 5 घंटे पढ़ना शुरू किया एंड लिटरली उसको 5 घंटे में कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, बट उसका आउटकम क्या निकला? 1%। सो रिमेंबर, इट डज नॉट मैटर कि आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना प्रोडक्टिव आउटकम है वो मैटर करता है। आप भले ही 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, बट इट शुड बी प्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव कैसे होगा? समझ में आना चाहिए, राइट? सो यू शुड गेट द क्लैरिटी जो भी आप पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, टेक अ ब्रेक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रेगुलर ब्रेक लो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, बॉडी को थोड़ा ब्रेक दो, एंड देन कीप ऑन उसके बाद फॉलो करो अपने प्लान को। देन गेट मोर वैल्यू फ्रॉम द मॉर्निंग आवर्स। सो बेसिकली ये इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग आवर्स से ज़्यादा वैल्यू रखनी है। जनरली क्या होता है, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वाई वी हैव टू टेल दैट यू शुड हैव अ वेरी हैवी ब्रेकफास्ट। आई एम श्योर यू ऑल ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर आपके सारे क्लिनिकल टीचर ने बोला होगा कि जब भी हॉस्पिटल आना है यू शुड हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। एंड नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब मान लो कि आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना है,
एंड आपको जो है नर्सिंग एजुकेशन पढ़ना है, तो इन दोनों में से आप क्या स्टार्ट करोगे सबसे पहले? ऑफ कोर्स जो हैवी चीज होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, मैं पहले वो स्टार्ट करूंगी। सो जो भी आपका टास्क है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट विद दैट टास्क इन द मॉर्निंग, ताकि ऐसा ना हो कि आपका पूरा मॉर्निंग निकल गया, इवनिंग में आपका वो मेजर टास्क पेंडिंग है, दैट विल गिव यू एन एंजाइटी अटैक कि मेरा अब तो मेजर टास्क तो अभी बचा ही हुआ है, पूरा दिन निकल गया, राइट। दो यू आर अ नाइट आउल, अगर आप रात में भी पढ़ने वाले जो है स्टूडेंट हो, देन ऑल्सो स्टार्ट योर मॉर्निंग विद मेजर टास्क, जो भी आपका मेजर टास्क है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा हो सके अब से आपको हैबिट बिल्ड करनी है कि कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन। एंड वन ऑफ द वेरी गुड मेथड इज पॉपअप को साइलेंट कर दो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको साइलेंट कर दो while you are giving your time for study, right? Get enough sleep, eat healthy and exercise daily, because here our physical health is also very important. So हमें mentally हम अपना focus दे रहे हैं पढ़ाई को, but what about physical health? कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पे बच्चे खाते नहीं है, सोते नहीं है, और you know वो एक ऐसा मोमेंट हो जाता है जब कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ। देन स्टे पॉजिटिव, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और रूल ऑफ प्रिपरेशन, दैट ऑलवेज stay positive, believe yourself that you are doing 100% and keep on rewarding yourself. This is also one of the rule कि आपको हर बार अपने आप को रिवॉर्ड करना है, that yes मैंने आज जो टारगेट था वो अचीव किया। अदर देन दैट फाइंड अ रोल मॉडल, इट कुड इट कैन बी एनीवन, आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए कि आपको जो है ऐसा बनना है, मुझे इसकी तरह फॉलो करना है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे आपका टीचर हो, कोई भी हो, दैट देयर शुड बी अ रोल मॉडल सो दैट यू हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम योर सेल्फ कि मुझे अपनी लाइफ में यार ऐसे करना है, मुझे ऐसे बनना है, राइट? Then last but not the least, like I said, that you have to keep on rewarding yourself, which is a self एक वो होता है appreciation कि मैंने कोई आपको जो है, किसी को नहीं पता आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी को नहीं पता आपने जो है आज 100 MCQ विदाउट ए नेगेटिव आंसर सॉल्व किए, आपको ही पता है ना। सो यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ, राइट? सो दीज आर द रूल ऑफ प्रिपरेशन विच स्पेशली फॉर ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ MLB Pro, I really want to follow these rule and start implementing these rule in their day-to-day life so that you can make your preparation journey a very good one. राइट, यू विल बी गेटिंग दिस PDF ऑफ डे वाइज प्रिपरेशन, ये आपको PDF मिल जाएगी थ्रू योर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसमें व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, सब कुछ लिखा है बिफोर योर फाइनल क्लास जो आपका स्टार्ट होगा 23 अप्रैल से, उससे पहले हमें क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा। सो एट लास्ट द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज, हमने जितनी भी अभी यहाँ पे इमेज फोटो देखी थी, यस दिस स्लाइड, ये हमने जो भी हम यहाँ पे जिसकी भी फोटो देख रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जो है एकदम से स्टार्ट किया और डे 1 में ही उन्हें सक्सेस मिल गई। नोबडी इज देयर, नोबडी इज लाइक दिस, राइट? एवरी सिंगल स्टूडेंट, or should I say nursing officer, you can see here on the screen, they have their set journey of success. They have not become the success in one day. They have started step by step. So success itself is basically, बनती है जब हम छोटे छोटे स्टेप से चलते हैं। तो always remember, the success is in your hand. All you have to do is you have to trust yourself. You have to trust the source and you have to decide, because once you decided, then every, जैसे बोलते हैं ना, अगर हमें कुछ चाहिए तो सारी कायनात जुड़ जाती है आपको वो चीज़ देने में। Similarly, we all are here to guide you. We all are ready to provide you the best quality of education, to make your concept more concrete, more strong, and everything depends upon you. So you have to decide. The date is 23rd of April, from which the live classes will be started. So do join this platform and make the best use of this, and we are here to guide you at every single step. So with this, I wish all the best for your preparation of NORCET 7.0. Till then, stay happy, stay healthy.